Trivedi, your maths teacher. This is the first class of maths after vacation. Today I am going to start the fifth chapter of maths, which is factorization. Okay, this is chapter number 5. Now, firstly, students, what is factors? You all know that if we write 12 is equals to 4 into 3 or 2 into 2 into 3. Okay? Then you know that 2 and 3 are the factors of the 12. Okay? 4 and 3 also the factor of 12. Similarly, if we write an algebraic expression, you know what is algebraic expression? It is in the form of ax square plus bx plus c, where a, b, c, here the plus minus, a, b, c are the real numbers and x is the variable. Okay? Now, the process of writing an expression in the form of terms or bracket multiplied together is called factorization. Okay? And for example, we write 5x square plus 15. Okay? Student, this is an algebraic expression. When we take common 5, okay, then it becomes x square plus 3. 15 divided by 5, this is 3. Okay? Here, the each term or bracket is the factor of the algebraic expression. And this phenomenon is called algebraic factorization. And this process is called factorization. Okay, students? Okay, students? Here, 5 and x square plus 3 are the factors, okay, are the factor of the equation 5x square plus 15. Clear? Now, let's solve some questions. I hope you all are clear what is factorization and what is factor. Okay? Now, here are some type of question. Firstly, we solve type 1 question. Okay? In this type, we common the factors. We take common. Okay? By taking out common factors. Okay? Let's see the question. Here, the first question is 2x minus 5y is equals to 2x minus 5y and 3x minus 4y minus 6 2x minus 5y into x minus 4y. Okay? This is an algebraic expression and factorize this equation. Then in this type of question, what will we do? Firstly, we find the common number. Okay? Now let's see the equation, and here the common term is 2x minus 5y. 2x minus 5y and 2 is also common. Then we take the common 2 into 2x minus 5y. Okay? Then when we take common is the complete expression, then the left number is 3x minus 4y. Okay? Minus here, when 6 is divided by 2, then 3, and this take common, then become x minus y. Okay? Now solve it. 3x minus 4y
minus 3x minus minus plus 3y. Okay. Then 2x minus 5y is equals to minus 4y plus 3y. Okay. Then students, here you can see that the algebraic expression this become in the bracket form multiply of brackets, which is 2 multiply 2x minus 5y and minus 4y plus 3y. Okay. Here the minus, actually we can solve this also. Minus 4y plus 3y become minus 3, this is plus. Okay. Now plus and plus, it become 2x plus 5y into 7y. Okay. Here we multiply it 7 into 2, then it become 14y 2x plus 5y. This is the final answer. Here student, we can say that the factors are 14y and 2x plus 5y of the equation. Okay. Now next is the next question. Okay student, the next question is a square plus b. This questions of your exercise 5.1. Okay. a square plus b square minus c square minus bc, c square minus a square minus b square plus ca square plus b square minus c square. Solve this question. Factorize this equation. Okay. In this question, firstly we find the common term. Here we can say that a square plus b square minus c square, a square plus b square minus c square. But in this is c square minus a square minus b square. Then firstly we take the common minus sign only. Okay. Then equation become a square plus b square minus c square. Then we take common minus sign, then minus minus plus bc, and here this both a square and b square become a square plus b square and minus c square plus c a square plus b square minus c square. Okay. Now students, in complete equation a square plus b square minus c square, we take the common this term. Okay. Now a square plus b square minus c square. Then the remaining term is here only ab is left plus here only bc plus ca. Then the answer is a square plus c square ab plus bc plus ca. This is the answer. Okay students. Now we solve the question by the second type of question. We solve second type of question, and the second type is type 2 is factorize the equations by grouping method. Okay. Factorize by grouping method. Okay, let's see the example. Question number first is a cube plus a cube plus a minus 3a square minus 3. Okay, this is the equation. Factorize this equation by grouping method. Then student, what will we do in this type of question? Firstly we form the group. Okay, firstly we form the group. Now let's see, here we can write a cube minus 3a square plus a minus 3. Okay, forming the groups. Okay students, now next what will we do? And we take out the common
square, here a minus 3. Here what will we take common? In a minus 3, here we take common only 1. Okay? Then 1 minus 3 is left. Now we can say that a minus 3 is the common in complete equation. Then we take common a minus 3. A minus 3. Then remaining term is a square plus 1. This is the answer. Okay? Now see the next question. Question number 2. Okay? And the question is ax plus by whole of square plus bx minus ay whole of square. Okay? Factorize this equation by grouping method. Now, what will we do in this type of question? Firstly, we use the identity a plus b whole of square and then a minus b whole of square. A plus b whole of square means a square plus b square plus 2ab. Okay? A square plus b square minus 2ab. Okay? Student, this is 2ax by plus, and here the minus 2ax by, this is cancelled out, and the remaining term is a square x square and b square y square plus b square x square a square y square. Okay? Now, firstly, we write this, we form the group for this a square x square plus b square x square b square y square plus a square. We can write this equation in the form of this. Okay? Now, take the common x square, then a square plus b square. Okay? Here we take common y square, the remaining is b square plus a square. We can say that a square plus b square is the common in the both the term. Then we take common a square plus b square, then x square plus y square is remaining term, and this is the answer of the question. Okay? Okay students, the next question is a square plus 1 upon a square minus 2 minus 3a plus 3 upon a square. Okay? Now, firstly we set this equation in this form, minus 2a into 1 upon a. We can write 2 into a into 1 upon a, because when we cancel out a by a, then it only become 2. Okay? Here we take common minus 3. Okay? When we take common minus 3, then this minus 3, this become in a, and here plus sign change into minus. When after taking the common 3, the left term is 1 upon a. Clear? Now, this whole term we can write a minus 1 upon a whole of square. Any problem? Here, check it. A square plus b square minus 2ab. Okay? Now, 3a minus 1 upon a. Now, take the common a minus 1 upon a. Then, after taking common, here square, one term is taking common, then left term is 1 upon a minus 3. Okay? This is the final answer. Clear students? Now, let's solve this question. X square plus we multiply x, it become ax cube plus x plus a. Okay? Now, form the group. Here we can take common a square x. A square x square. Okay? When we take common a square
Then after taking the common ax square, a plus x, remaining term is a, and here the remaining term is x. Okay, plus here we take common only 1, then x plus a. Then after taking common x plus a from both sides, become ax square plus 1. This is the final answer. Okay students, now the third type. Okay, characterize the question by the third type, and which is trinomial. Okay student, now the third type is trinomial of the form ax square. In this type of question we factorize the equation which is in the form of ax square plus minus bx plus c. Means this is the quadratic equation. Okay, when the power of variable is 2, then it becomes the quadratic equation. Okay, then how we factorize the quadratic equation? By splitting the middle term. Okay, now middle term means, for example, this is the equation ax square plus bx plus c. Okay, here a, b and c are the real number, x is variable. Okay, if our equation is in the form of ax square plus bx plus c, then we split the term b such that the sum or difference of b is equals to b. Okay, we split this term into two terms. Such kind of way, then the sum of these two terms, sum or difference of these two terms is equal to b, and the product of these two terms is equals to a into c. Clear? Now let's see the example. Okay, the first example is x square plus 5x plus 6. If we compare this equation by this equation, the value of a is 1, ax square means a is 1, b is 5 and c is 6. Okay, now what will we do? Firstly, we split the b is 5. Then we can write this 2x plus 3x. Okay, now check this. 3 plus 2 is 5x and 3 into 2 is 6x square, which is 6 into x square. Clear? Now after splitting we take common. Here the common is x, then remaining is x plus 2. Here the common is 3, then remaining x plus 2. When we divide 6 by 3, then we get 2. After taking common x plus 2, we get x plus 3. This is the answer. Okay. Now let's see the next example and solve this. The next example is x square plus 5x minus 6. Okay. Here this is the same equation, only sign is changed. What will we do? We change split 5x, but in this case we change the sign. Okay, we use minus 5, we use plus 6x minus x minus 6. Why we use these numbers? Because 5x minus x becomes 6x. And 6x minus x is 5x, and 6x into minus x we get minus 6x square. Okay. Now what will we do? We take common x, we get x plus 6. Here we take common minus 1. Okay. After taking common minus 1, we get x plus 6. Now take common x plus 6, we get
x minus 1. This is the answer. Okay students, now okay students, today I explain three type of factorization method. Okay, the first is by grouping method, and the second is by the first is taking out the common factor, and the second is by grouping method, and the third is by splitting the middle term. Okay, now that's all for today. We will continue this chapter on my next class with some another example of by splitting the middle term, and we discuss some other type of method. Okay, thank you so much. Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra, and today's my lecture is about the chapter of Geography, Chapter 3, Rotation and Revolution. This chapter is related to the class 9 ICSE board. And now let's start. Firstly, there are some topics which I discuss by this video. The first is introduction. The first lecture is for the introduction. कि मैं पूरे चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी. एंड द नेक्स्ट इज मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. हाउ मेनी मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ? देयर आर टू मूवमेंट्स. फर्स्ट इज रोटेशन, सेकंड इज रेवोल्यूशन. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस. I will also explain what is inclination and what is the effect of inclination. And the last is seasonal changes. कि किस मूवमेंट से सीजनल चेंजेस होते हैं. तो the rotation causes day and night and the revolution causes seasonal changes. ये मैं पूरा क्लियर करूंगी आप लोगों को in this video. And now, so firstly, I will start from rotation. What is rotation? Rotation, the earth rotates on its own axis from west to east once in 24 hours. यहाँ पर हम बताएंगे कि कैसे क्या रोटेशन क्या होता है. फर्स्टली आप लोगों को पता है देयर इज अ सोलर सिस्टम जिसमें सन है और उसके 8 प्लैनेट्स हैं. जो 8 प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड जो है वो चारों तरफ घूमते हैं अपनी ओन ऑर्बिट पर. उनकी अपनी अपनी ऑर्बिट होती है, वो अपनी ऑर्बिट पर ही जो है वो जो है सन का पूरा एक सर्कल घूमते हैं. तो दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. बट फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन द रोटेशन. तो नाउ विद दिस डायग्राम आई विल एक्सप्लेन रोटेशन. ओके, सो दिस इज इक्वेटर, ठीक है, and this is prime meridian. Okay, this line is for tropic of Cancer and this line is for the tropic of Capricorn. Okay, अब हमने बताया कि अर्थ का अपनी एक्सिस पे रोटेट होना. एक्सिस का मतलब ये जो हमारी लाइन है इसमें हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे. This is the axis. This is imaginary line. It's called axis. और इसी axis पे जो अर्थ होती है वो रोटेट करती है, ठीक है, from west to east. ये इस तरीके से रोटेशन होता है from west to east. You all know the north, south, east and west. West to east कि इस तरह से मैं एरोस बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये वेस्ट टू ईस्ट जो है वो जो है रोटेट करती हुई है. तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है दिस इज कॉल्ड रोटेशन. और इस रोटेशन को कंप्लीट करने में, अर्थ को पूरे रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं. 24 आवर्स में वो अपना एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट करती है. So, and the some points are the characteristics of rotation. The first is axis of the earth is imaginary line. जो अर्थ की एक्सिस है वो जस्ट लाइक अ इमेजिनरी लाइन है. ये कहीं भी अर्थ में हमको दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हमने उसको इमेजिन कर लिया है कि इस तरीके से अर्थ की एक इमेजिनरी लाइन है जिससे वो रोटेट करती है. एंड द सेकंड इज एक्सिस लाइज बिटवीन टू पोल्स. एक्सिस जो है वो टू पोल्स के बीच में लाई करती है. द फर्स्ट इज नॉर्थ पोल जो कि हमारा ये ऊपर है, और सेकंड इज साउथ पोल, ठीक है. ये दो पोल्स में हमारे लाइज करती है. एक्सिस फ्रॉम द वर्टिकल इज टिल्ट इंडिकेट्स द एंगल ऑफ 23 and 1.5. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अर्थ है हमारी वो मैंने बोला कि रोटेट करती है और एक इमेजिनरी लाइन होती है.
बट द फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो समझने वाली है कि जो हमारी अर्थ है वो टिल्ट है। टिल्ट का मतलब होता है एक तरफ थोड़ी सी झुकी हुई। तो ये देखिए जो मैंने बनाया आपको, इसीलिए मैंने इस लाइन को ऐसे बनाया है जो भी। तो ये क्या है कि हमारी थोड़ी सी जो है एक नॉर्थ की तरफ झुकी हुई है, और जो नॉर्थ की तरफ ये जब टिल्ट होती है तो ये जो टिल्ट करके जो इसका एंगल बनता है, दिस एंगल इज 23.1.5। और इसके बाद जो हमारा ये एंगल बनता है परपेंडिकुलर में, वो हमारा होता है 66.1.5। तो सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक्सेस फ्रॉम द वर्टिकल इज टिल्ट। वर्टिकल में जो एक्सेस है वो टिल्ट होती है, इट मेक्स द एंगल ऑफ 23.1.5, और ये यहाँ पर 23.1.5 डिग्री एंगल को बनाती है। और जो हमारा परपेंडिकुलर इसका सेकंड होता है वो हमारा 66.1.5 होता है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन पे बनता है। ये हमारा एंगल बना परपेंडिकुलर, और ये हमारा बना स्ट्रेट लाइन के पास, ये हमारा 66.1.5 डिग्री का एंगल बन जाता है। एंड नाउ द सम फीचर्स ऑफ रोटेशन। द फर्स्ट इज डायरेक्शन। सबसे पहले हमको रोटेशन में ये समझने की जरूरत है कि जो अर्थ का रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में वो रोटेट करती है। द फर्स्ट थिंग, द वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। सेकंड, इट टेक्स 23 आवर्स 59 मिनट्स एंड 4.09 सेकंड। ये अपने एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए लेती है 23 आवर्स 59 मिनट्स और 4.09 सेकंड लेती है। अब देखिए इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, जो कि मैंने आपको बताया, ये जो इंक्लिनेशन है 23.1.5 डिग्री का, इट इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ये अर्थ की एक्सिस का इंक्लिनेशन है 23.1.5 डिग्री, जो कि अर्थ के टिल्ट होने की वजह से एंगल बन जाता है। एंड नाउ स्पीड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि क्या स्पीड होती है किसकी, रोटेशन की। जो वो रोटेट कर रही है उसकी स्पीड क्या है, 1670 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि एक घंटे में वो 1670 किलोमीटर को कवर करती है। वाई और कैसे, देखो सबसे पहले अर्थ का सर्कमफ्रेंसेस, हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि अर्थ का एक सर्कमफ्रेंसेस होता है। द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अर्थ इज 4075 किलोमीटर, ये उसका सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, फिर हम आपको बता रहे हैं कि वो पूरा एक रोटेशन 24 जो है वो आवर्स में करती है। अब 24 आवर्स का मतलब कि उसको पूरा 4075 किलोमीटर की पूरी सर्कमफ्रेंस को कवर करना है 24 आवर्स में। इज इट क्लियर? तो हम इसको 24 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आवर में निकल आता है कि हम 1 आवर में वो कितना कवर करता है, क्योंकि 24 आवर्स में उसको इतने किलोमीटर्स को कवर करना है, तो 1 आवर में वो करती है 1670 किलोमीटर को 1 आवर में वो कवर कर लेती है। इस तरीके से करके 1 आवर में इतना कवर किया, फिर सेकेंड आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स, एंड जस्ट लाइक 24 आवर्स में वो इतने किलोमीटर्स को कवर कर लेती है, 40,075 किलोमीटर्स को। एंड नाउ द इफेक्ट्स ऑफ इंक्लिनेशन। अब हमारी इंक्लिनेशन का इफेक्ट क्या है? अब इंक्लिनेशन से क्या होता है, जो हमारा ये इंक्लिनेशन हो रहा है, ये डे और नाइट आर नॉट इक्वल। इसकी वजह से जो डे और नाइट होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए जैसे कि मे बी सन दिस, अब देखिए जब सन की रेजिस इस पे पड़ती है अर्थ पे, तो आप ये देख रहे हैं कि इधर का पोर्शन कम हो रहा है और इधर का पोर्शन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये टिल्ट है। टिल्ट होने की वजह से, अगर ये टिल्ट ना हो, एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे सीधे इसी लाइन पर ही अगर जो है अर्थ अपनी रोटेट करती रहेगी तो ये बिल्कुल इक्वल एक इल्यूमिनेशन बनेगा। बट इट इज टिल्ट, तो टिल्ट होने की वजह से जो डे और नाइट होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? ये इसका एक और इफेक्ट हो गया, हमारे फीचर्स में भी आ गया और इंक्लिनेशन का इफेक्ट भी हो गया। एंड नाउ द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। अब रोटेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कि रोटेशन जब होता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट हमको दिखाई देते हैं। द फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉजेस डे एंड नाइट। सबसे पहला है कि जो हमारा रोटेशन होता है वो डे और नाइट को कॉज करता है, इसकी वजह से ही डे और नाइट होती है। द सेकेंड इज द वेरिएशन इन टेम्परेचर। अब इसकी वजह से और क्या होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि जब सन की रेस पड़ती है, इधर से सन की रेस पड़ रही है और हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्ट है, और टिल्ट होने के बाद भी रोटेट कर रही है, तो जैसे जैसे वो टाइम चेंज होता है या वो घूमने स्टार्ट करता है अपना रोटेशन, तो जो टेम्परेचर
टेम्परेचर होता है, जैसे कि आप देखते हैं मॉर्निंग में आपको उतनी ज्यादा टेम्परेचर उतना हाई नहीं होता है जितना जो है नून में हो जाता है। उसके बाद इवनिंग में आते आते टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे करके डाउन होने लगता है। तो वेरिएशन दिखता है आपको टेम्परेचर में इस रोटेशन की वजह से। अगर रोटेशन ना हो तो जिधर सन है उधर की तरफ बराबर आपको जो है टेम्परेचर हाई दिखेगा और दूसरी तरफ टेम्परेचर बिल्कुल नहीं दिखेगा। और इसी की तरीके से जो मैंने बोला कॉजेस डे एंड नाइट, आपको पता है जैसे कि दिस इज अर्थ, सन। अब ये सन की जब रेजेस इस पे पड़ रही हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है तो ये इस तरीके से यहां पर हमको ये डे दिखाई देता है, और जो इसका बैक पोर्शन होता है दिस इज नाइट। इज इट क्लियर? और जो ये हमारी लाइन बन जाती है इमेजिनरी, दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी लाइन। तो ये जो हमारा एक इमेजिनरी लाइन बन जाती है जो डे और नाइट को आपस में अलग अलग करती है, दिस इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, क्योंकि ये इस तरफ भी बनती है और उसके अपोजिट साइड में भी पूरा एक सर्कल बन जाता है, जो क्योंकि एक पोर्शन में हमारे सन की लाइट पड़ती है, वो पूरा पोर्शन हमारा जो है वो डे हो जाता है, और उसके बैक का पोर्शन जो पूरा है जहां पर सन रेजेस नहीं पहुंच रही है तो वो नाइट हो जाती है। तो ये जो लाइन बनती है डे और नाइट को जो सेपरेट करते हैं आपस में, दैट इज दिस सर्कल इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एंड द अपार्टेंट मूवमेंट ऑफ द सेल्सियस बॉडी इज एविडेंस, और इसके साथ साथ जो सेल्सियस बॉडी की अपार्टेंट है और जो उनका मूवमेंट है ये भी बताता है। अगर रोटेशन नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक रोटेशन में भी रोटेट होती रहती है और रेवोल्यूशन भी करती है। सोचिए दो वर्क करती है, दो मूवमेंट्स एक साथ करती है कि अपनी एक्सिस पे रोटेट भी हो रही है और सन के चारों तरफ भी। जैसा कि हम लोग जो है वो सोलर सिस्टम में देखते हैं, मे बी इट्स अ सोलर सिस्टम, नाउ दैट दिस इज द ऑर्बिट्स, ये अपनी अपनी ऑर्बिट में, मान लीजिए फर्स्ट इज मरकरी, द सेकंड इज मरकरी, वीनस, देन अर्थ, ठीक है, दिस इज अर्थ। तो अर्थ अपनी एक्सिस पे भी, ये उसकी एक्सिस है, वो अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती जा रही है और इस धीरे धीरे करके वो अपनी ये इसकी जो ऑर्बिट है वो इस ऑर्बिट को भी कवर कर रही है। ऑर्बिट को कवर करने में ये हम बताएंगे आपको रेवोल्यूशन में, क्योंकि इसमें 365 डेज लगते हैं और इसको रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, मे बी 23 आवर्स 59 मिनट्स 4.09 सेकंड्स में, और ये बहुत इक्वल टाइम में भी दिखा दिया गया है इसको, ठीक है। और इन द लास्ट रोटेशन ऑफ द अर्थ क्रिएट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसके साथ साथ जो रोटेशन होता है वो अर्थ में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी क्रिएट करता है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट द रोटेशन। सो दैट आर द इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन। आई थिंक जो है वो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये हम लोग मूवमेंट में देखते रहते हैं, हम लोग पूरे दिन में भी देखते रहते हैं कैसे डे आते हैं। सुबह मॉर्निंग में जो है सनराइज करता है, नाइट में शाम को जो है सन जो है सेट होता है। तो ये सब आप लोग देखते हो तो आप लोग को भी लगता होगा ये किस तरीके से होता है। जब हम ये सब ज्योग्राफी के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे करके यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, सन के बारे में, अर्थ के बारे में, अर्थ के रोटेशंस के बारे में, अर्थ के मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, कैसे दिन और रात हो रहे हैं, कैसे हमारे सीजन चेंज होते हैं, सर्दी होती है, फिर गर्मी आते हैं, फिर जो है रेनी सीजन आ जाता है। तो ये सब चीजें हम लोगों को धीरे धीरे करके पता चलती है, जो कि हम ज्योग्राफी में ही देखते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया। आज मैंने आपको रोटेशन क्लियर किया। द अर्थ रोटेट्स। मैं दोबारा से जल्दी से एक बार फिर से सारे फीचर्स को रिवाइज करती हूँ। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में, और इट टेक्स 23 आवर्स 59 मिनट्स एंड 4.0 सेकंड्स। एंड नाउ एट द इन 1 आवर इट कवर्स 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये रोटेशन जो है चलता रहता है, और डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। अर्थ का सर्कमफ्रेंस ये है, इसको हम 24 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आवर का निकलता है। एंड इफेक्ट्स का है, जो इंक्लिनेशन होता है इफेक्ट का, वो डे और नाइट को जो है वो इक्वल नहीं करता है, जिसकी वजह से डे और नाइट हमारी इक्वल नहीं होती है, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन। इसी के साथ हमने आपको बताया कि जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी झुकी हुई है जो है, जिसकी वजह से 23 बनेगा
हाफ डिग्री का इंक्लिनेशन होता है परपेंडिकुलर पे, और हमारी जो ये स्ट्रेट हमारा ये इक्वेटर हम आपको दिखा रहे हैं, तो जो स्ट्रेट हमारा जो है सरफेस होता है, स्ट्रेट सरफेस पे जो इसका एंगल निकल कर आता है वो 66 1.5 डिग्री, और टिप वाला जो आता है वो 23 1.5 डिग्री बनकर आता है। इस तरह से मैंने बताया डे और नाइट किस तरह से सन की जब रेजेस पड़ती है तो एक पोर्शन डे होता है, उसके अपोजिट में नाइट हो जाती है, और जो भी सर्कल इन डे और नाइट को आपस में डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। टुडे एंड नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड in my next video I will explain the revolution and the effects of inclination of the axis and the seasonal changes. Thank you and have a nice day. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 ICSE बोर्ड, विषय हिंदी। बच्चों, आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है पत्र लेखन। बोर्ड परीक्षाओं में पत्र लिखने के लिए आता है, तो सबसे पहले बच्चों हम यह जान लेते हैं कि पत्र किसे कहते हैं। लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र कहलाता है। क्या बताया परिभाषा मैंने बच्चों कि लिखित रूप से अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम होता है वो पत्र कहलाता है। अब बच्चों, पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, तो मैंने हेडिंग डाली है पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। पत्रों के कितने प्रकार बच्चों मैंने बताया आपको? दो प्रकार बताए। मुख्य रूप से पत्रों के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब हम जानते हैं कि औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं या किन्हें कहते हैं। ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। औपचारिक पत्र किनको लिखे जाते हैं बच्चों? ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। इन पत्रों में कथ्य ही या कथन ही मुख्य होता है तथा सूचनाओं एवं तथ्यों को महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, किसी अवसर विशेष पर लिखे गए पत्र। बच्चों, औपचारिक पत्र की परिभाषा मैंने क्या बताई? ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। इन पत्रों में कथन ही मुख्य होता है तथा सूचनाओं एवं तथ्यों को महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र। दूसरा प्रकार क्या मैंने बताया? शिकायती पत्र। तीसरा प्रकार क्या बताया? संपादक के नाम पत्र। चौथा प्रकार क्या मैंने बताया? व्यावसायिक पत्र। और अगला प्रकार या पांचवा प्रकार कौन सा है बच्चों? किसी अवसर विशेष पर लिखे गए पत्र। बच्चों, यहाँ मैंने जो नोट किया है इसको आपको अपनी CW की कॉपी में जो है पत्र लेखन हेडिंग डालकर सुव्यवस्थित तरीके से सुंदर राइटिंग क्या करना है, लिखना है। तो आप समझ गए होंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अब पत्रों का जो दूसरा प्रकार आता है जो वो है अनौपचारिक। तो अब हम ये जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं। अपने
व्यक्तिगत बातों का वर्णन किया जाता है। बच्चों, अब मैं आपको औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप बता रही हूँ कि कैसे आप इस पत्र को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पत्र का प्रारंभ कैसे करते हैं, आरंभ कैसे करते हैं। तो पृष्ठ की बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले का पता। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पृष्ठ। बाएं तरफ क्या होता है पृष्ठ का, जब आप लिखते हो तो आपका जो लेफ्ट साइड है बाईं तरफ आप क्या लिखेंगे, सेवा में। फिर इसके बाद जो संबंध होगा वो लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, विभाग लिखेंगे और इसके बाद शहर का नाम लिखेंगे। बच्चों मैं ये समझाने की दृष्टि से लिख रही हूँ, जैसे सेवा में। मान लीजिए आपको 2 दिन की छुट्टी की आवश्यकता है, अवकाश की आवश्यकता है, तो आपको स्कूल के प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, सेवा में। अब इसके बाद संबंध, उस व्यक्ति का उस संस्थान से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, वो कौन है वहाँ के, प्रधानाचार्य। तो आप क्या लिखिए बच्चों, प्रधानाचार्य। इसके बाद बच्चों आपको कॉमा लगाना है। फिर इसके बाद विभाग, किस विभाग के अंतर्गत आता है, या कौन सा गली या कौन सा स्कूल, कौन सा मोहल्ला है। तो मान लीजिए आपका स्कूल है शिवाजी इंटर कॉलेज, तो आप लिखोगे शिवाजी इंटर कॉलेज। इसके बाद बच्चों फिर से कॉमा लगेगा और इसके बाद आप क्या लिखोगे, शहर का नाम। तो शहर के नाम में लिखोगे केशव नगर, केशव नगर कानपुर। और इसके बाद बच्चों आपको क्या लगाना है, पूर्ण विराम लगाना। बात आई समझ में कि जब हम औपचारिक पत्र का प्रारंभ करते हैं तो पृष्ठ की बाईं तरफ प्राप्त करने वाले का क्या लिखते हैं, पता लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेवा में लिखा जाता है, फिर संबंध लिखा जाता है, फिर विभाग लिखा जाता है और इसके बाद शहर का नाम लिखा जाता है। बच्चों एक चीज जो विशेष ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें सीक्वेंस में ही स्टार्ट होती हैं, यानी ये नहीं कि सेवा में यहाँ लिखा, प्रधानाचार्य यहाँ लिखा गया, शिवाजी इंटर कॉलेज वहाँ लिख दिया, केशव नगर यहाँ लिख दिया, ना। सारी चीजें कैसी रहेंगी, सीक्वेंस में रहेंगी। तो सेवा में, जहाँ से सेवा में शुरू होगा वहीं से प्रधानाचार्य, वहीं से शिवाजी इंटर कॉलेज और वहीं से क्या स्टार्ट करेंगे, केशव नगर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद बच्चों आता है विषय। विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तो विषय जैसे अभी मैंने बताया कि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे। तो विषय क्या लिखोगे, आप लिखोगे विषय, विषय हेडिंग डालोगे और विषय को भी बच्चों कहाँ से स्टार्ट करोगे, इसी जगह से स्टार्ट करोगे, विषय डालोगे और लिखोगे 2 दिन के अवकाश के संदर्भ में। क्या आप संक्षिप्त में विषय लिखेंगे, 2 दिन के अवकाश के संबंध में। इसके बाद बच्चों संबोधन डाला जाता है और संबोधन में क्या लिखा जाता है, महोदय, मान्यवर, माननीय। तो आप मान लो लिख रहे हैं तो आप फिर क्या लिखेंगे, विषय के बाद महोदय लिखेंगे। इसी सीक्वेंस में सारा लिखा जाएगा महोदय। और फिर मुख्य विषय, मुख्य पत्र का जो विषय है कि अचानक तीव्र ज्वर आ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो मुख्य विषय लिखेंगे और पत्र का अंत कैसे किया जाता है, पत्र के अंत में धन्यवाद देकर बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपने संबंध के अनुरूप पत्र लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर करता। वो भी बच्चों सीक्वेंस में ही आएगा। कैसे आएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसी सीक्वेंस में धन्यवाद लिखेंगे। देखिए यहाँ मैंने बताया है यही सीक्वेंस रहेगा, धन्यवाद लिखेंगे। इसके बाद भवदीय लिखा जाता है या लिख देंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आप हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद आपका नाम लिखा जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, पता लिखेंगे और इसके बाद अंत में सबसे बाद में क्या लिखा जाता है बच्चों,
दिनांक या डेट जिसको बोलते हो उसको क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। आया बच्चों समझ में कि ये सारी चीजें जो है एक सीक्वेंस में ही रहती हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बच्चों अब मैं आपको अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने बच्चों आपको कौन सा प्रारूप बताया था औपचारिक पत्र लेखन का, और अब कौन सा बता रही हूँ, अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप। सबसे पहले प्रारंभ कैसे करते हैं बच्चों, पृष्ठ की बाईं तरफ लेफ्ट साइड बाईं ओर भेजने वाले का पता व तारीख या दिनांक या तिथि, जैसे कैसे लिखेंगे, 223 बटे 508 कॉमा लगाएंगे, केशव नगर कॉमा कानपुर। इसके बाद बच्चों यहाँ बताया जा रहा है कि फिर क्या डाली जाती है, तारीख या दिनांक डालते हैं। तो मैंने आज की दिनांक यहाँ पर डाल रखी है 29 जून 2020। इसके बाद बच्चों फिर क्या आता है, संबोधन तथा अभिवादन। पत्र लिखते समय संबोधन तथा अभिवादन का विशेष महत्व होता है। संबोधनों में विशेषण का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जैसे पूजनीय दादाजी। अब बच्चों ये जो पूजनीय शब्द आ रहा है ये क्या है, विशेषण। तो आप जब संबोधन करेंगे तो उसमें उपयुक्त उचित विशेषण का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, पूजनीय दादाजी। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सादर चरण स्पर्श। इसके बाद बच्चों जो तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा बिंदु आता है, वो है पत्र की मुख्य विषय वस्तु। आप कौन सी बातें अपने दादाजी से शेयर करना चाहते हैं, अपने भावों और विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। इसके बाद बच्चों अंत आता है, और अंत में क्या करते हैं कि उचित संबोधन के साथ जो तुम्हारा संबंध है उसको इंगित करते हुए आपका पुत्र, आपका अनुज मतलब छोटा भाई, तुम्हारा अभिन्न मित्र, आप ऐसे संबोधनों को क्या कर दिया जाता है, नीचे लिखा जाता है। इसके उपरांत क्या किया जाता है, हस्ताक्षर किए जाते हैं, और फिर क्या लिखा जाता है, अपना नाम लिखा जाता है। बच्चों अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप मैंने बताया, सबसे पहले क्या करते हैं, पृष्ठ के बाईं तरफ जो है सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता और क्या होता है, तिथि, किसको पत्र आप भेज रहे हो उसका पता और दिनांक डालते हैं। फिर उसका संबोधन डालते हैं और अभिवादन डालते हैं। जैसे संबोधन क्या है, पूजनीय दादाजी, और अभिवादन क्या है, सादर चरण स्पर्श। इसके बाद बच्चों पत्र की जो मुख्य विषय वस्तु होती है उसको लिखा जाता है, और अंत में पत्र का अंत करते हुए जो आपका संबंध है उसके अनुकूल शब्द का चयन करते हुए आपका प्रिय पोता या आपका पुत्र या आपका, जैसे यहाँ मैंने दादाजी का संबोधन किया है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, आपका पौत्र। इसी तरह आपका अनुज, आपका अभिन्न या तुम्हारा अभिन्न मित्र आदि ऐसे डाला जाता है। और इसके बाद क्या किया जाता है, जो हस्ताक्षर किया जाता है, और फिर क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। बच्चों औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप मैंने आपको बताया। आज हम उसी प्रारूप के अनुसार एक छोटा सा प्रार्थना पत्र लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है जिस पेज पर प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, यदि उसकी हाशिया है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो सबसे पहले अपनी बाईं तरफ क्या कीजिए, हाशिए को खींचिए। मैंने अभी आपको बताया था या इसके पूर्व बताया था कि 2 दिन के अवकाश के लिए मान लीजिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो यह प्रार्थना पत्र के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। तो
औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत सबसे पहले मैंने बताया था कि बाईं तरफ क्या लिखा जाएगा, सेवा में। तो आपने सेवा में लिखा। इसके बाद जो संबोधन है उसको लिखा जाएगा या संबंध लिखा जाएगा। तो संबंध किसके नाम आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, प्रधानाचार्य। तो सब क्या लिखेंगे इसके ऊपर, प्रधानाचार्य, सेवा में प्रधानाचार्य। इसके बाद भी बच्चों कॉमा लगाएंगे, अर्धविराम लगाएंगे। इसके बाद बच्चों क्या डालेंगे आप, उस स्कूल का नाम डालेंगे शिवाजी, शिवाजी इंटर कॉलेज। इसके उपरांत बच्चों कॉमा लगेगा, फिर एड्रेस पड़ेगा, पता पड़ेगा, केशव नगर, केशव नगर, केशव नगर कानपुर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सारी चीजें सीक्वेंस में आएंगी, सीरियल में आएंगी, एक ही जो है एंगल से लिखी जाएंगी। इसके बाद बच्चों आप क्या डालेंगे, क्या बताया गया था कि आपको क्या लिखना है, विषय। तो आप क्या हेडिंग डालेंगे, विषय। और विषय में लिखेंगे, विषय जो होता है वो संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तो लिखेंगे 2 दिन के अवकाश के संदर्भ में, अवकाश के संदर्भ में। इसके बाद बच्चों क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। और इसके बाद बच्चों फिर संबोधन आएगा तो आपको क्या लिखना होगा, महोदय। फिर क्या लगाएंगे बच्चों, कॉमा लगाएंगे। फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि मैं गौरव तिवारी, आप कोई भी काल्पनिक नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने काल्पनिक नाम यहाँ पर लिखा है, मैं गौरव तिवारी, कक्षा 9, कक्षा 9 या कक्षा 9 ई का छात्र हूँ, का छात्र हूँ, का छात्र हूँ। मैं विशेष कार्य हेतु, विशेष कार्य हेतु पिताजी के साथ, पिताजी के साथ शहर से बाहर, मैं विशेष कार्य के पिताजी के साथ शहर से बाहर जा रहा हूँ, जिसके कारण मैं 2 दिन विद्यालय आने में, मैं 2 दिन विद्यालय आने में, विद्यालय आने में असमर्थ रहूँगा, असमर्थ रहूँगा, अतः को आप क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके इसी सीक्वेंस में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए अतः मुझे
1/7/2020 तथा 2/7/2020 को अवकाश प्रदान करने की कृपा करें आपकी महान दया होगी, बच्चों ये मैंने बहुत सा साधारण सा जो है प्रार्थना पत्र लिखकर आपको प्रारूप क्या किया है, समझाया है। विषय वस्तु लिखने के उपरांत बच्चों अंत में आप पृष्ठ के बाईं तरफ क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, अपने हस्ताक्षर करेंगे। और सॉरी मैं एक चीज यहाँ भूल गई, आपको धन्यवाद भी लिखना है। इसके बाद बच्चों आप क्या लिखेंगे, धन्यवाद, आपकी महान दया होगी। इसके बाद क्या लिखेंगे, धन्यवाद। और धन्यवाद लिखने के बाद क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य। इसके उपरांत बच्चों आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और लास्ट में अंत में क्या डालेंगे बच्चों, दिनांक डालेंगे। बच्चों ये बात समझ में आई, मैं दोहरा दूं कि सारा सीक्वेंस में लिखा जाएगा। विषय वस्तु लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, धन्यवाद लिखेंगे, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपने हस्ताक्षर करेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे और इसके उपरांत क्या लिखेंगे, दिनांक या तारीख आप लिखेंगे। और इस तरह औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र का ये जो प्रारूप है मैंने आपको लिखकर बताया। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके जो नोट्स हैं बच्चों मैं PDF के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगी।